Okay, so thank you everyone for joining. So हम लोग आज 1 अगस्त 2021 आज फ्रेंडशिप डे है, तो हम लोग वी विल रीड फ्रॉम अ बुक, वेरी फेमस बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी की बुक है, काफ़ी पुरानी पर बहुत फेमस है एंड मैंने बहुत पहले पढ़ी थी उसको, तो इट विल बी अ गुड रिफ्रेशर। हम समरी पढ़ेंगे बुक की और देखेंगे कि हाउ वी कैन मेक फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। विल यू रीड, मैत्री? Huh. What's it about? How to win friends and influence people provides a masterclass in managing and dealing with people, from making a good first impression to disagreeing effectively. It contains all you need to know about becoming skillful, pleasant, and assured in your personal and business dealing. आगे पढ़ो. हाँ, आगे पढ़ो। What's in it for me? Master the art of human relationships. Do you wish you find it easier to make friends or to convince others of your way of thinking? Would you like to improve your relationships with colleagues, clients, and even family members? If so, look no further. These blinks are the ultimate guide to getting along with people and enjoying happier and more fruitful relationships. Discover simple, concrete techniques that will help you get what you want in any situation. Combining anecdotes with actionable advice, these blinks are full of tips that have already enriched the lives of millions. In these blinks, you will learn why you should never criticize others, what Al Capone can teach us about leadership, and what dogs can teach us about making friends. Okay, thank you. सो तो जैसे मैंने बताया, आज फ्रेंडशिप डे है, तो आज हम ये बुक पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी और बहुत अच्छी बुक है, अबाउट हाउ टू मेक गुड फर्स्ट इम्प्रेशंस, हाउ टू मेक गुड रिलेशनशिप्स। कुछ लोग शाय होते हैं या पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो दिस इज़ समथिंग व्हाट वी कैन लर्न, एंड इट्स अ लाइफ स्किल जो हमको सिखाई नहीं जाती है, परंतु बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोगों से संबंध बनाना सीखें, एक अच्छे डीपर लेवल पे रिलेशनशिप्स। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि एक होती है रिलेशनशिप्स, तो बहुत सभी की होती है, कुछ शैलो होती हैं और कुछ डीप होती हैं। सो कुछ कमेंट्स आई विल ऐड अबाउट मेकिंग डीपर रिलेशनशिप्स एज वी गो अलोंग। पर ये जो इसमें इस बुक में ये तो समरी है, इसमें काफ़ी एनेक्डोट्स भी हैं जो समरी में नहीं इन्वॉल्व है, परंतु ये जो बुक है इसमें हम लोग एक्शनेबल एडवाइस होगी विथ हाउ टू enrich our life. So well, I'll not cover these topics right now, but we will go more, and let's read this section. Who will like to read? Prabhuji, praise say. Yes. Hare Krishna. Dandavatam. Praise is more effective than criticism. When you hear the name Al Capone, a few associations probably spring to mind, like mob violence, corruption, and criminal protection rackets. Whatever you know about the famous gangster, you probably don't think of him as a do-gooder or public benefactor. But one man did. Capon himself, as he put it, I have spent the best years of my life giving people the lighter pleasures, helping them have a good time, and all I get is abuse. The existence of a hunted man. The notorious mobster who terrified Chicago believed that deep down he was a good man. What we learn from this? Well, like Al Capone, we tend to believe that we are in the right no matter what we have done. But if we struggle to criticize ourselves, just imagine how we feel.
when you are criticized by others. ओके, थैंक यू। सो इसके आगे का और बाद में पढ़ेंगे। तो ये बता रहे हैं जो टाइटल है कि प्रेज इज मोर इफेक्टिव देन क्रिटिसिज्म। तो ये एक स्टोरी बता रहे हैं एक पर्सन की, एल कैपोने और या कैपोन। तो ये जो इनके बैकग्राउंड से समझ में आ रहा है कि ये कोई शिकागो में कोई वो थे गैंगस्टर, जो जिससे अब गैंगस्टर है तो नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, मोस्टली उनको बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। और तो वो बता रहे हैं कि जब हम इनका नाम सुनते हैं तो जो लोग जानते होंगे वो शायद जब उनका नाम सुनते हैं तो वो मॉब वायलेंस, करप्शन, क्रिमिनल प्रोटेक्शन रैकेट्स, ये सब के बारे में सोचते हैं क्योंकि उनका नाम इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी उनके बारे में बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं सोचेगा कि वो कुछ लोगों का अच्छा करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं। पर वो खुद अपने बारे में क्या सोचता था, वो अगर हम देखें तो वो ऐसा बोलते थे खुद के बारे में कि मैंने अपने जीवन के जो सबसे अच्छे साल हैं वो लोगों को प्रसन्नता देने में दिए। मैंने उनको अच्छा समय बिताने में हेल्प करी और मुझे इसके बदले में क्या मिला, मुझे अब्यूज़ मिला। और मुझे क्या मिला कि मुझे लोग ढूंढते रहते थे जो भी प्रोसिक्यूट करने के लिए या इस प्रकार से। तो इन्होंने शिकागो में बहुत जैसे लिखा है यहाँ पे तहलका मचा रखा था, परंतु वो खुद क्या बिलीव करते थे कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि इस एल कैपोन की तरह हम सब भी हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। कुछ भी जो भी हमने किया हो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। और ये सेंटेंस मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। इफ वी स्ट्रगल टू क्रिटिसाइज आवरसेल्फ, जस्ट इमेजिन हाउ वी फील व्हेन वी आर क्रिटिसाइज्ड बाय अदर्स। ये तो इसका एक पार्ट तो समझ में आ रहा है कि हाँ, हमें जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो हमें कैसा लगता है। ऑल्दो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हम खुद को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो हमको वो चल जाता है। हम बल्कि मोस्टली लोग खुद को काफ़ी क्रिटिसाइज करते रहते हैं। वी डोंट डील विथ आवर सेल्स विथ लव या विथ काइंडनेस। तो हम खुद को हमेशा हर स्थिति में हम लोग अपने आप को जज करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, या ऐसी हूँ, मैं ये खराबियाँ हैं। तो हम उनको अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, पर दूसरा व्यक्ति अगर हमें क्रिटिसाइज करता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। और या फिर जैसा कभी कभी मेरा ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूँ या मुझ में ज़्यादा बुद्धि नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि हाँ इस व्यक्ति की तुम में बुद्धि नहीं है, तो मेरे को लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है क्योंकि वो मेरे आइडिया से मैच हो रहा है। अगर वो कुछ उल्टा बोलेगा, उसने कुछ ऐसा देखा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत समझदारी का काम किया और वो बोलेगा कि तुम बहुत समझदार हो, तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा क्योंकि मेरा आइडिया खुद के बारे में है कि मैं मूर्ख हूँ। सो एनीवेज, जब इन जनरल जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हमें खराब लगता है। तो अब इसके आगे तो ये मेनली ये है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। मोस्टली हम ये सोचते हैं कि हम सही हैं और हमको क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता अपने बारे में। सो ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। यहाँ से तो प्रॉब्लम विथ क्रिटिसाइजिंग पीपल। कौन पढ़ रहा? मनीष, यू कैन रीड। कोई और भी पढ़ सकता है। I can also read. ओके, ठीक है। Should I read? प्लीज गो अहेड। Okay. The problem with criticizing people is that it puts them on the defensive. People take it personally when they are told they are in the wrong. Their natural instinct is to justify their behavior. What's worse, people tend to bear lasting grudges against those who criticize them
even if the criticism was well intentioned. So, what's the solution? It's true that people need to be urged to change their ways from time to time, but if we cannot help them by criticizing them, what can we do? The answer is simple: we can praise them. Everyone wants to feel valued and important, and a few words of appreciation can get you closer to your desired result than any amount of criticisms and complaints. That was the philosophy of Charles Schwab, a phenomenally successful steel magnate. According to Schwab, his ability to manage people was the key to his success in business. Unlike most senior business people, Schwab tried to criticize others as little as possible. Instead, he focused on praising them. In his decades of business experience, Schwab found that you can achieve far more by encouraging and praising people than you can by criticizing them. Praise inspires us to work harder and better and make our relationships much warmer. ओके, थैंक यू। तो ये बता रहे हैं कि जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो व्यक्ति डिफेंसिव हो जाता है, वो अपना बचाव में लग जाता है कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, जो कि नेचुरल टेंडेंसी है कि वो जस्टिफाई करने लगते हैं अपने एक्शंस को। उनको अगर कोई बोले कि तुमने गलत किया है तो वो जस्टिफाई करते हैं कि नहीं मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा था, या जो भी उनका कारण है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब कोई जैसे मुझे अगर कोई क्रिटिसाइज़ करेगा तो क्या होगा कि मैं उस व्यक्ति के प्रति लंबे समय तक ग्रजेस रखूँगा कि अरे इसने मुझे क्रिटिसाइज़ किया और इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे वैसा बोला, और या दूसरों के पास जाके मुझे क्रिटिसाइज़ किया। तो वो ये लंबे समय तक चलती रहेंगी, भले ही वो क्रिटिसिज्म वेल इंटेंशन्ड हो, उसका इंटेंशन कुछ भी हो, पर क्रिटिसिज्म को हम वो नहीं कर पाते डाइजेस्ट। सो उसका सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं? अब कभी ये होता है कई बार कि अब हमने किसी को कुछ गलत कार्य करते हुए देखा तो उसको हम बता सकते हैं कि ये आपको बदलने की ज़रूरत है। तो एक ऑनेस्ट फीडबैक भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो व्यक्ति यही उसमें रहेगा गलतफ़हमी में कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। तो कई बार करेक्शन करना भी ज़रूरी है, पर अगर क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो उसके आंसर में बोल रहे हैं कि हम उनको प्रेज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए कि वो वैल्यूड फ़ील करे, वो इम्पोर्टेंट है। और तो ये एक बेसिक नीड है जो हमने जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है मार्शल रोज़नबर्ग की, उसमें भी सुना है। या अगर हम जो मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स है उसकी बात करें तो इन सभी में ये सब मेरी टीचर काफ़ी इस पे एम्फसाइज़ करती हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनके ऊपर हम टू फील वैल्यूड, कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी हर्ड, ये चीज़ें बहुत हमारी बेसिक नीड्स हैं और ये बहुत हमारी लाइफ को रन करती रहती हैं, कई बार सबकॉन्शियसली। तो अगर हम किसी को प्रेज़ करते हैं तो उसको लगता है कि हाँ यार ये मेरी वैल्यू करता है, ये मेरी वो है। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने अभी इसमें नहीं बताई पर आगे वो बताएँगे। ये शायद मैंने जब बुक पढ़ी थी उसमें मुझे बहुत मतलब क्लिक करी थी कि जो भी अगर हम किसी को एप्रिशिएट करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जेन्युइन हो। ऐसा नहीं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है it looks like manipulation कि a few words of appreciation can get you closer to your desired result than any amount of criticisms and complaints। तो ऐसा लग सकता है कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अपना काम निकलवाने के लिए आप अप्रिशिएट करो, परंतु उस बुक में क्लियरली लिखा हुआ था कि आप अगर किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो तो वो मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए कि आप इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हो ताकि सामने वाले को अच्छा लगे, या आप मतलब कि झूठा सिर्फ दिखावे के लिए, झूठे प्रकार से नहीं, वो वास्तविक होना चाहिए। सो ये इम्पोर्टेंट है।
और ये मैंने देखा है इट रियली वर्क्स कि हम अगर किसी को अप्रिशिएट हृदय से करते हैं और वो उसको टच करता है, तो क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक्चुअली मोस्ट लोगों को तो पता भी नहीं रहता है कि उनके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और जब कोई उस चीज को अनकवर करता है, दिखाता है, तो वो बहुत पावरफुल, इट कैन बी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम जब लोगों से मिलें, कई बार होता है कि हम नए लोगों से मिल रहे हैं, हमको पता नहीं क्या बात करें, तो हम ढूंढ सकते हैं, हम अगर बहुत फोकस्ड हैं, कॉन्शियस हैं, तो जैसे मैं कई बार पूछता हूँ कि भाई आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या है? फिर अगर तो उसमें फिर हम एप्रिसिएशन के पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं कि हम कैसे सामने वाले की स्किल्स और उसकी जिस चीज़ से वो कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, उन चीज़ों को ढूँढ के और उसमें उसको एप्रिशिएट कर सकें। तो ये इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं चार्ल्स स्वैब का कि एक बहुत कोई पुराने, क्योंकि ये बहुत पुरानी बुक है, तो इसमें जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ये पुराने लोगों के मिलेंगे। तो ये कोई स्टील की इंडस्ट्री के बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, और उनकी जो सक्सेस थी बिज़नेस में, वो किस लिए थी? क्योंकि वो लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते थे। और उन्होंने क्या किया, जो जैसे सीनियर बिजनेस लोग होते हैं, तो वो कई बार लोगों को क्रिटिसाइज करना उनका ज़रूरत भी रहती है कि भई ये काम ठीक से करो या इस प्रकार से। पर श्वेब ने क्या ट्राई किया कि क्रिटिसाइज करने के बजाय या क्रिटिसाइज कम करने की करें और ज़्यादा फोकस प्रेज़ करने में करें लोगों को। उन्होंने बोला कि अगर हम लोगों को प्रेज़ करते हैं, एनकरेज करते हैं, तो हम उससे बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, बजाय कि जब हम उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि प्रेज़ हमको इंस्पायर करती है, हम अपना अच्छा करें, बेटर करें, और हमारी रिलेशनशिप्स को ज़्यादा अच्छा बनाती है। सो प्रेज़िंग इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, लेट्स मूव फर्दर। कौन पढ़ना चाहेगा इसको आगे? Nupur will read. Okay. Okay. Make everyone you meet feel interesting and important. Picture this. You have come home from a long day at work, and as soon as you open the door, you see your puppy bounding towards you. Her tail is wagging and she's jumping up in excitement. You can't help but smile at your cute furry friend. If you have a dog, then you understand why people keep them as pets. It's because of how they make us feel. Dogs make such great companions because they simply can't hide their affection for us. There's a lesson to be learned from dogs, and it can help you attract friends with puppy like ease. So what's the human equivalent or of canine affection? How do you show your goodwill to a new acquaintance and earn hers in return? Well, for a start, you can stop trying to be interesting. It doesn't work. People rarely care about much People rarely care much about the details of other people's lives or hobbies. Instead, they usually care about themselves and their own lives. So, the quick way to a stranger's heart is showing that you are interested in him too. How can you do that? Well, start by showing genuine pleasure when you meet someone. Smile at him and greet him enthusiastically. Make an effort to remember his name and be sure to use it in the conversation. In short, show people that you are happy to be in their company. And don't stop there. If you really want to make a favorable impression on people, it's not enough to be warm and interested in them. You also need to make them feel important. Okay, we'll read further more. पर जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमको लोगों को ये फील कराना है कि वो इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। अगेन इन सारी चीज़ों में जेन्युइनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको ये चीज़ें आर्टिफिशियली या दिखावे के लिए या मैनिपुलेशन के लिए नहीं करनी। परंतु जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रहे हैं कि अगर हम घर पे आते हैं और कोई हमारे घर में कुत्ता है या कोई पेट है, तो वो खुश होता है हमको देख के, और हमको भी अच्छा लगता है वो चीज़। तो इनसे हम क्या सीख सकते हैं डॉग से या पेट से?
कि वो हमको अच्छा फील करवाते हैं, वो हमको इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं कि हाँ, हम जब आते हैं तो वो खुश होते हैं। तो ये और जैसे इसमें लिखा इम्पोर्टेंट कि दे कांट हाइड देयर अफेक्शन फॉर अस। यूजुअली क्या होता है कि लोग अपना अफेक्शन या उसको भी हाइड करके रखते हैं, उसके भी बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पर हम क्या सीख सकते हैं कि हम मतलब कि ये लेसन हम इनसे सीख सकते हैं और इस चीज़ से हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हैं और रख सकते हैं, जो हमारे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हों। क्या है कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी इंटरेस्टिंग, हमको क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी, जैसे हमने पढ़ा कि हमारी नीड होती है, वी वांट टू बी वैल्यूड, वी वांट टू बी अप्रिशिएटेड। तो क्या होता है कई बार लोग उस चीज़ में लगे रहते हैं कि कैसे उस चीज़ को दिखाया जाए लोगों को कि मेरे अंदर क्या इम्पोर्टेंट है, मेरे अंदर क्या स्पेशल है। और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसा बताते रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमको अप्रिशिएट करें और लोग हमको वैल्यू करें। परंतु होता क्या है कि वो इस प्रकार से वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग केयर नहीं करते कि हमारे लाइफ में क्या है, हम क्या इम्पोर्टेंट है, क्या स्पेशल है। पर लोग अपने बारे में, हर कोई अपने एक अपने बारे में सोचता है, हर कोई अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। तो अगर हम मैच्योर हैं और हम चाहते हैं कि लोगों से कनेक्ट करना, तो हमारे लिए बेस्ट तरीका ये है कि उस व्यक्ति में इंटरेस्ट दिखाएं, उसको कि उसमें क्या इंटरेस्टिंग है, क्या उसको हम अप्रिशिएट करें। तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने एक दो ट्रिक्स बताई हैं, जो टिप्स हैं कि सबसे पहले तो अगर हम किसी से मिलते हैं तो हमको जेन्युइन प्लेजर शो होना चाहिए उस व्यक्ति से मिलने का। उसको स्माइल के साथ मिलें, उसको एंथुसियास्टिकली ग्रीट करें, उस व्यक्ति के नाम को याद करें, क्योंकि बोलते हैं कि एक व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है, क्योंकि वो चीज़ उसके बहुत पर्सनल है, उससे कनेक्टेड है। तो उसका नाम हम याद रख सकें और उसको कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकें, क्योंकि जब हम नाम को यूज़ करेंगे तो फिर वो उसको समझ, वो उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ, हम उससे कनेक्टेड हैं, हम ये जुड़े हुए हैं। सो और इस हमको ये फील करना है कि हम खुश हैं उस व्यक्ति की कंपनी में। और और क्या ये भी पढ़ लिया था ना हमने। और सिर्फ वही नहीं, हमको सिर्फ फेवरेबल इम्प्रेशन बनाना हो तो हमको सिर्फ ऐसा नहीं कि वार्म और इंटरेस्टेड होना है, पर हमको ये भी फील कराना है उनको कि वो इम्पोर्टेंट हैं। तो अगेन ये एक लाइफ स्टाइल चेंज की बात कर रहे हैं। डेल कार्नेगी इज नॉट सेइंग समथिंग जस्ट कि भाई बोलने के लिए या सिर्फ काम निकालने के लिए ऐसा किया जाए, पर एक तरीका होता है एक हमारे जीवन का कि हम वाकई में लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, और एक होता है कि हम बस ठीक है अपनी दुनिया में हैं, अब किसी से मिलना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है, तो उससे बाहर निकले। एंड एक्चुअली हम ये देखते हैं कि आजकल की दुनिया में ये बहुत हो गया है कि लोग अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, उनको दूसरों से कनेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो स्किल सिखाई भी नहीं जाती और उसकी इम्पोर्टेंस भी हमें नहीं पता है। पर जैसा मैं सीख रहा हूँ अपनी लाइफ में 40 इयर्स में, मैंने जो शुरू में तो हो सकता है कि 25 साल तक तो कोई अवेयरनेस थी नहीं, पर धीरे धीरे जैसे अब अवेयरनेस बढ़ रही तो ये समझ में आ रहा है कि लोगों से कनेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमें कुछ दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो कनेक्शन एक उसका जीवन बदल सकता है सामने वाले का। और हमारे लिए भी कनेक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो जो हमारी लाइफ हो उसमें डीपर लेवल के कनेक्शंस हों, तो उसके लिए हमको वो होना चाहिए कि हाँ, हो सकता है कि हमारे पास समय लिमिटेड हो, हम हर किसी से एक एक घंटा रोज बात नहीं कर सकते। हमारे कई फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम नहीं बहुत सब रेगुलरली बात कर पाते हैं, पर हमको हमारे हार्ट में एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये इस व्यक्ति की एक यूनिक प्लेस है मेरी लाइफ में। कहीं ना कहीं जब भी हम मिले, कि इतना भी हमने समय बिताया एक साथ में, पर वो एक यूनिक प्लेस है उस व्यक्ति की। तो ये हम जेन्युइनली अगर हम बताएंगे
और एक्सप्रेस नहीं भी करें, पर अगर हम फील कर रहे हैं तो वो अपने आप बाहर आएगा। और ये डेल कार्नेगी बोल रहे हैं कि उस चीज को हम एक्सप्रेस भी करें। सो लेट्स रीड मोर फर्दर। 2 पैराग्राफ हैं ये इस सेक्शन में, मैं ही पढ़ लेता हूँ ये 2 पैराग्राफ, so someone else can read the next section. So a landscaping inspector who attended one of the author's seminars learned this lesson firsthand. The man once complimented a client on his fine pedigree dogs, which led to a long conversation about the client's passion for dog breeding. The respect and genuine interest that the inspector displayed not only established a warm professional relationship, it also led to the client giving him an expensive purebred puppy as a parting gift. When you demonstrate that you are truly interested in others and value their opinions, you will often receive great and unexpected rewards. तो बता रहे हैं कि एक लैंडस्केपिंग इंस्पेक्टर था जो इसने ऑथर जो डेल कार्नेगी ये कई सारे सेमिनार्स देते थे, तो वो सेमिनार अटेंड किया और उसने इस सेमिनार से सीख के और वो कहीं पे एक कोई क्लाइंट के वहाँ पे गया था इंस्पेक्शन के लिए, और उसने उस व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट किया कि उसके यहाँ पे कुछ डॉग्स थे बहुत अच्छे। तो उससे वो कन्वर्सेशन चालू हुआ, बहुत लंबा चला कि वो जो क्लाइंट था वो उसका डॉग ब्रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो बहुत लंबा समय तक वो कन्वर्सेशन चला। और जो रिस्पेक्ट और जेन्युइन इंटरेस्ट उस इंस्पेक्टर ने दिखाया उसमें, उस व्यक्ति में, उस क्लाइंट में, और उसकी जो स्किल थी या उसका जो इंटरेस्ट था डॉग ब्रीडिंग में, उसमें इंटरेस्ट दिखाया, तो क्या हुआ कि वो जो उनकी एक बहुत लंबी और बहुत अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप रही लंबे समय तक, और साथ ही साथ मतलब कि एस्टैब्लिश हुई ऐसी रिलेशनशिप, और उस क्लाइंट ने उनको एक बहुत एक्सपेंसिव पपी एक गिफ्ट के रूप में दिया। तो ये बता रहे हैं डील कार्नेगी कि जब इस प्रकार से हम ट्रूली इंटरेस्टेड होते हैं दूसरों में और उनके ओपिनियंस को वैल्यू करते हैं, तो हमको कई बार बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाले अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और वो रिवॉर्ड्स चीज़ों के रूप में नहीं हो सकते, जरूरी नहीं कि चीज़ों के रूप में हो, पर वो रिवॉर्ड्स संबंधों के रूप में मिल सकते हैं कि वी मे विन लाइफ लॉन्ग वेरी ट्रू रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ। सो अभी तक हमने सुना कि लोगों को प्रेज करना इम्पोर्टेंट है, और ये लोगों में इंटरेस्ट रखना और लोगों को ये बताना कि वो इम्पोर्टेंट है। सो टू विन फ्रेंड्स एंड मेक गुड फ्रेंड्स फॉर लाइफ। सो आगे पढ़ते हैं। अभी तक कोई कमेंट या कुछ है अभी तक? तो मतलब रिलेशन बनाना, जो अभी आपने लास्ट में बोला, लाइफ लॉन्ग रिलेशन। तो जैसे हमको मतलब क्योंकि वो कोई चीज तो नहीं दे रहे, रिलेशन एस्टेब्लिश कर लाइफ लॉन्ग, लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा ही ना? थोड़ी सी आपकी आवाज़ कट गई आखिरी आखिरी में, पर हाँ, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करेंगे हमारे जीवन में, बजाय कि कुछ टेम्पररी चीज़ें। ये लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करें, उससे लोगों की कमियां नहीं ढूंढ के उनकी जो अच्छाई है वो बताए, ऐसा ना? सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही है। आई एम नॉट श्योर दूसरों को भी कट रही है क्या आवाज़? हाँ प्रभु। आई एम नॉट श्योर क्या मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम है या आपके यहाँ पे है। लेट्स सी, मे बी अगर आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करें। इन द मीन टाइम समवन एल्स कैन रीड। I can read. ओके। Encourage others to talk and listen carefully when they do.
In the midst of the American Civil War, President Abraham Lincoln summoned an old neighbor to the White House seeking advice. When he arrived, Lincoln spent hours discussing the emancipation of the enslaved people in the South. Was it a good idea? Would the country as a whole react positively? Lincoln went back and forth all evening, examining the pros and cons of every possible move. Then, without receiving a word of advice from his old friend, he finished up, thanked his neighbor, and sent him home. In the end, Lincoln hadn't needed an advisor. He had plenty of those. What he needed was a listener. Like Lincoln, we all value good listeners, but it often seems that they are in short supply. We all like to talk about ourselves, about our achievements, our worries, our past, and our futures. But that's not the way to win friends. In fact, that's how to lose them. ओके, थैंक यू। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने पहले भी इस चीज़ को कवर किया है जब हमने बुक पढ़ी थी यू आर नॉट लिसनिंग। उसमें हमने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को किया था कि हमको कोशिश ये करनी है कि जब हम लोगों से संबंध बनाने की बात कर रहे हैं, फ्रेंडशिप बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम सुनने की आदत ज़्यादा डालें बोलने के बजाय। और वो करना इजी नहीं होता है क्योंकि हम एक पैटर्न है हमारी जिसको हम यूज टू हैं। हर व्यक्ति अपने बारे में बात करना चाहता है। तो पर इसमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने एक ओल्ड अपने नेबर को बुलाया वाइट हाउस में उससे कुछ बात करने के लिए, और कई घंटे तक वो उससे कुछ बात कर रहे थे, उसको कुछ बता रहे थे वो क्या सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा करने का, कि जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था तो जो एनस्लेव्ड पीपल थे उनको छुड़वाने के लिए क्या ये ठीक रहेगा, कंट्री कैसे वो करेगी। और बहुत देर तक पूरी शाम एक प्रकार से वो उनसे बात करते रहे। और उनका जो मित्र था वो उसने कुछ एडवाइस नहीं दी, परंतु वो उन्होंने उसको कन्वर्सेशन को फिनिश किया, उसको धन्यवाद बोला और उसको घर भेज दिया। क्योंकि एक्चुअली लिंकन को कोई एडवाइज़र नहीं चाहिए था। उनके पास बहुत सारे लोग थे जो बहुत स्मार्ट ब्रिलियंट लोग थे जो एडवाइज़र्स थे। what उनको क्या चाहिए था, ऐसा व्यक्ति जो उनको सुन सके बस। इसी प्रकार से लिंकन की तरह ही हम सभी को हमारी लाइफ में अच्छे ऐसे लोग चाहिए जो हमें सुने और समझें। सिर्फ ऐसा नहीं कि सुन के और पर हाँ जो हमको समझें। और पर ऐसा लगता है कि ऐसे लोग ज़्यादा हैं नहीं दुनिया में, और जो सच है जैसे लिख रहे हैं कि इट ऑफन सीम्स दैट दे आर इन शॉर्ट सप्लाई। तो क्योंकि जैसे हम कई बार बात करते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही है, या ट्रेनिंग दी भी जा रही है तो लोग नहीं ले रहे हैं कि हमको सुनना चाहिए। तो लोग बस एक जनरल अपनी लाइफ जी रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसा चल रहे हैं। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है जो हम सीख सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग अपने बारे में बात करना चाहते हैं, हमारे अचीवमेंट्स के बारे में, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मेरे पास्ट में ये हुआ, मेरी चिंता है, तो उनके बारे में बात करते हैं पर उससे मित्र नहीं बनते। उससे बल्कि उल्टा ऐसा लिख रहे हैं कि इनफैक्ट कि हम उससे अपने मित्रों को खो सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस खुद पर है। ये जो अटेंशन है, हमको अटेंशन खुद से हटा के दूसरों पर लगाना है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि हम सिर्फ सेल्फ एब्जॉर्ब्ड रहेंगे, और सेल्फ एब्जॉर्ब्ड रहेंगे तो हम दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम दूसरे को सुन भी नहीं पाएंगे कि क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है और हम यही सोच रहे हो कि मैं इसको कैसे जवाब दूंगा, मैं कैसे एडवाइस दूंगा। तो एक्चुअली हमारा अभी भी फोकस खुद पे ही है। सामने वाले को हम जब सुन भी रहे हैं और अगर हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है कि हमारा फोकस फिर भी खुद पर ही हो कि मैं कैसे इसको बहुत ये बोलूं कि उसकी लाइफ में इम्पैक्ट हो या समथिंग। सो इन एनी केस इट्स इम्पोर्टेंट कि हम दूसरों को सुनने की आदत डालें। अगर हम वाकई में ऐसा कर पाएंगे तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स जीवन में बना पाएंगे। क्योंकि अगेन एक जैसे हमने पहले बात करी कि हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, तो उसमें एक नीड होती है टू बी वैल्यूड,
टू बी अप्रिशिएटेड जो हमने पहले पढ़ा, इसी प्रकार से एक नीड होती है टू बी हर्ड, कि लोग हमें सुने और समझे, टू बी अंडरस्टूड। तो टू बी हर्ड मतलब कि हमको सुनना है विदाउट जजमेंट, हमको व्यक्ति को समझने का प्रयास करना उसके पर्सपेक्टिव से, ऐसा नहीं कि हमारे हिसाब से ये सही है ये गलत है और हम उसी में लगे रहें। सही गलत की जगह से हम सुन नहीं सकते। सो लेट्स रीड फर्दर। Manish, you want to read? आवाज आ रही मेरी? अभी तो ठीक आ रही है। Nobody likes people, यहाँ से ना, who monopolize conversations. If you want to make a favorable first impression and win people's heart, take the opposite tack. Invite them to tell you about their life and interest, and listen attentively to what they say. Do you want to become friends with the new guy at work? Try asking him open-ended questions that he may enjoy answering, like how is he finding his new position, or if he has any hobbies. And remember, pay attention. If you are going to appear distracted and uninterested while others speak, you are better off not encouraging them to talk at all. Take it from Theodore Roosevelt, who knew that engaging people on a topic they find fascinating is a surefire to make friends. Every time he had an important meeting, Roosevelt would study a book dealing with one of his guests' favorite pictures. That way, he could have an informed and pleasant chat with anyone about their own preferred hobbies and interests. It worked for Roosevelt, but you don't necessarily have to do that much homework. Just share the limelight, ask questions, and listen attentively. Before long, drawing people out will become second nature and making friends will be a cinch. ओके, थैंक यू। तो ये जो सेक्शन है इसमें आगे में ये बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा अगर कोई एक व्यक्ति है, अगर कोई कन्वर्सेशन हो रहा है और उसमें एक ही जना बोला जा रहा है बोले जा रहा है तो लोगों को वो पसंद नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों को नहीं पसंद करता है। तो अगर हमें अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना है, लोगों से कनेक्ट करना है, तो हमको उल्टा करना चाहिए। क्या कि हम उनको इनवाइट करें, उनको बोलें कि आप अपने जीवन के बारे में बताइए, आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बताइए, और उसको बहुत ध्यान से सुने जो वो बोल रहे हैं। मतलब लोगों को बोलने का मौका दें, और सिर्फ मौका ही नहीं दें बल्कि लोगों को एनकरेज करें कि दूसरे लोग कुछ बोलें। तो जैसे बोल रहे हैं कि अगर कोई नया व्यक्ति आपके वहाँ पे काम करने, कोई कलीग है जो नया आया है, तो आप उसको ऐसी चीज़ें, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिसको उत्तर देने में उसको मज़ा आए। मतलब जैसे कि उसको कैसा लग रहा है काम पे, या उसकी क्या हॉबीज़ हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है अटेंशन पे करना, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, उससे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप अपने बारे में बताओ या अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओ, और हम इधर उधर देख रहे हैं, हमारा ध्यान ही नहीं है, हमारा इंटरेस्ट एक्चुअली है ही नहीं, हम सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। उससे बेटर है कि हम उसको बोलें ही नहीं कि तुम बोलो। पर अगर हम उसको एनकरेज कर रहे हैं तो फिर हमको उसको ध्यान से सुनना चाहिए। फिर ये थियोडोर रूजवेल्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये भी जहाँ तक है ये अमेरिकन फेमस पर्सनालिटी हैं, कि वो जब उनको ये पता था कि अगर हम किसी से मित्रता करना चाहते हैं तो उस सामने वाले के इंटरेस्ट का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बात करेंगे तो डेफिनेटली वो बात करेगा और इंटरेस्टेड रहेगा। तो उनकी कोई भी जब ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंग्स होती थी किसी गेस्ट के साथ में, तो वो क्या करते थे, उसके पहले समय देते थे कि उस सामने वाले जिससे मीटिंग होने वाली है उसकी पसंद की जो टॉपिक्स हैं
उससे रिलेटेड कुछ बुक पढ़ें, और फिर जब वो मीटिंग होती थी तो वो ताकि उस व्यक्ति से उस टॉपिक के बारे में थोड़ी ठीक ठाक तरीके से जानकारी सहित बात कर सकते थे। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है, अभी कोई मान लो आया वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, अब अगर मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है या तो मैं उससे कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। पर अगर मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, मैंने कुछ पढ़ा है, तो मैं थोड़ा एटलीस्ट कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। तो वो इस प्रकार से समय देते थे उस चीज को पहले मिलने के पहले। तो बोल रहे हैं कि डेल कार्नेगी लिख रहे हैं कि रूजवेल्ट के लिए ठीक है, उन्होंने वो इतना समय देते थे, जरूरी नहीं है कि हमको इतनी मेहनत करनी पड़े कि हम किसी से भी मिलें तो पहले उससे रिलेटेड बहुत टॉपिक पढ़ें, रिसर्च करें, ऐसा कुछ। बस हमको क्या करना है, प्रश्न पूछने हैं और उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। सामने वाले का जो टॉपिक है वो हमको पता करना रहेगा, वो भी बातचीत में हम पता कर सकते हैं अगर हम अटेंटिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सॉरी, अगर हम फोकस्ड हैं तो और अगर हम ऐसा बार बार करेंगे तो लोगों से बात करना या लोगों से बात उनको बात करने के लिए एनकरेज करना, यह हमारा सेकंड नेचर बन जाएगा और हमारे लिए दोस्त बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि लोगों को प्रेज करना, लोगों को इंटरेस्ट के साथ लोगों से बात करना या उनको इम्पोर्टेंट फील कराना, लोगों को ध्यान से सुनना, उनके इंटरेस्ट के टॉपिक्स में के बारे में बात करना। इन सब चीज़ों में अगर हम देखें तो एक कॉमन थीम ये है कि ध्यान हमारी तरफ से अपने ऊपर से हटा के दूसरे पे लगाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि खैर एक जब अच्छा संबंध एस्टेब्लिश हो जाता है तब दोनों चीजें होती हैं कि हम अपने बारे में भी, अपना हार्ट भी शेयर करते हैं और दूसरे को भी सुनते हैं। पर स्पेशली शुरू में जब हम संबंध बनाना चाह रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दूसरे से ज्यादा बात की उसको मौका दें कि वो अपने बारे में बोले, या हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको हम अच्छा फील करा रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं। So it's a nice way to make friends, deep level friends, और उनको मैंने क्या बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए। So जैसे कि हमने पढ़ा आज फ्रेंडशिप डे पे, इट्स अ नाइस टिप्स। ओके, नेक्स्ट, who would like to read? कोई और पढ़ना चाह रहा है? अदरवाइज आई कैन कंटिन्यू। So if you can't avoid an argument, then disagree as gently as possible. तो इसमें बता रहे हैं कि आपको अगर एक आर्ग्यूमेंट को जीतना है तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, सामने वाले का जो हमारा जो ओपोनेंट है उसको कुछ ऐसे चीज़ों में उलझा दें जो कि थोड़ी सी कठिन हो, या फिर हम उसको बताएं कि भाई हमारी जो जानकारी है वो ज़्यादा सही है, हमारे नंबर्स और ये, या फिर हम सामने वाले की थिंकिंग में छेद ढूंढ के उसको बर्स्ट करने की कोशिश करें। इस तरीके से अगर हम कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, हम जीत तो जाएंगे आर्ग्यूमेंट, पर हमारा जो सामने वाला है, जो प्रतिद्वंदी है, वो क्या होगा, वो हमसे बैर रखेगा या वो हमको रिसेंट करेगा, क्योंकि तो वो कभी भी हमारे से एग्री नहीं करेगा। हमको खैर ये है कि ये सारी जो टिप्स बता रहे हैं जेन्युइनली हमको लोगों में वो जगाने के लिए हैं कि हम लोगों को जब अगर हम उससे बात कर रहे हैं और हमारे डिफरेंसेस हैं, डिसएग्रीमेंट है, तो अगर हम उससे और झगड़ा करेंगे
तो उससे ऐसा नहीं है कि हम एग्रीमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है, स्पेशली जब हम अगर किसी से डिसएग्री करते हैं और हम एक प्रकार से आर्ग्यू करते हैं, तो वो और ज़्यादा अपने उसमें होते हैं, क्योंकि व्यक्ति को क्या रहता है कि मैं अपनी पोजीशन बचाना इम्पोर्टेंट है, भले ही वो गलत हो, उसको ये भी पता होगा ना कि अगर मैं गलत हूँ तब भी वो क्या करेगा कि अपने डिफेंस में बातें करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी रेपुटेशन या अपना वो ज़्यादा प्रिय होता है। तो इस प्रकार से जब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और जब वो आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं तो कोई भी नहीं जीतता उसमें। तो अगर हम कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए कि डिसएग्रीमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, और अगर आर्ग्यूमेंट है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो हमको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पे ये जो कुछ टिप्स बता रहे हैं, जो हमको माइंड में रखनी चाहिए। क्या सबसे पहले इन्हें बता रहे हैं, इफ यू वांट टू कन्विंस समवन दैट यू आर व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, नेवर से द वर्ड्स यू आर रॉन्ग। अगर हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, तो अगर हम इससे ऐसे चालू करेंगे कि तुम गलत हो और मैं सच हूँ, तो वो वर्क नहीं करेगा। सो उस वो ये नहीं सोचना चालू कर देगा कि हाँ मैं गलत हूँ और सामने कि आप सही बोल रहे हो। उसके मेकिंग योर केस सो ब्लंटली won't bring your opponent around to your way of thinking. Instead, she'll take offense, double down on her own convictions and try her best to prove you wrong. बल्कि अगर हम ये बोलेंगे कि तुम गलत हो, तो सामने वाला और क्या करेगा, वो हमारी सोच के बारे में विचार करने के बदले वो क्या करेगा, उसको और पर्सनली ले सकता है और अपने उसमें हो जाएगा कि नहीं मैं सिद्ध, अब मैं बताता हूँ कि नहीं मैं सही हूँ और आप गलत हो। तो उसके बजाय दूसरा जो सटल और जेंटल अप्रोच है, जो बेहतर है, वो हम आगे पढ़ेंगे। A subtle and gentle approach is far more likely to be effective. Rather than trying to prove your case by force, try to lead your opponent to your conclusions in a spirit of friendly inquiry. But how do you get someone who disagrees with you to cooperate? The trick is to just acknowledge the possibility that you might be wrong. Try saying something like, well, I could be wrong. Let's look at the facts. This is often enough to disarm a stubborn opponent. And if you do, in fact, turn out to be wrong, be gracious in defeat and try to be the first to admit your mistake. Owning up to your errors preemptively often makes others take a softer tack. On the flip side, if you turn out to be right, don't rejoice. Your opponent is unlikely to adopt a new opinion if you make it feel like a humiliation. थैंक यू। तो बता रहे हैं कि अगर एक सूक्ष्म और बेहतर अप्रोच ये है कि अगर हम किसी से आर्ग्यू कर रहे हैं और हमको ये बताना है कि भाई आप गलत हो मैं सही हूँ, तो ये अगर हम बोलेंगे कि नहीं तुम गलत हो, देखो मैं बताता हूँ कि मैं कैसे सही हूँ, उसके बजाय आप उसको फोर्स से अपना केस प्रूव करने के बजाय आप एक फ्रेंडली इंक्वायरी के रूप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कैसे कि सामने वाला क्यों कोऑपरेट करेगा अगर हम डिसएग्री कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई हो सकता है कि मैं गलत हूँ, अब आप बताओ कि ऐसा ऐसा क्या है, मतलब हम एक जेन्युइनली वो पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा आपको क्यों लगता है या ऐसा क्या है, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ये सही है। इस प्रकार से हम उससे पूछ सकते हैं। और इस प्रकार से जब हम बात करेंगे, अगर हम बोलते हैं कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, आप बताओ कि आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों लगता है या समथिंग, तो क्या होगा कि जो एक स्टबर्न अगर ओपोनेंट भी है तो वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, वो क्योंकि उसको अभी फाइट नहीं करना है। जब हम फाइट करते हैं तो सामने वाला ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है, जब हम फाइट नहीं कर रहे हैं, हम वाकई में समझना चाह रहे हैं सामने वाले को,
तो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा उसका, तब ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी की है कि हम सच को देख पाएंगे। अदरवाइज हम अपने अपने जो आइडियाज़ हैं उसको लेके लड़ते रहेंगे, पर वास्तविकता क्या है उसको देखने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। तो और फिर बोल रहे हैं कि अब अगर ऐसा होता है कि हम गलत थे, मान लीजिए कि हमने सामने वाले से कुछ बातचीत कर रहे हैं, उसका व्यू पूछ रहे हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रूव हो जाता है कि हाँ हमारी सोच गलत थी क्योंकि सामने वाले ने कुछ जो बताया वो सही लग रहा है हमें, तो हम अपनी गलती मान लें, क्योंकि उससे क्या होता है कि सामने वाला और सॉफ्ट भी हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, फिर सामने वाला अगर हम और फाइट करेंगे या गलती नहीं मानेंगे और उसने प्रूव कर दिया कि तुम गलत हो, तो मतलब कि वो जो कनेक्शन है वो नहीं बन पाएगा। और अगर हम गलत हैं, हम अपनी गलती मान लेते हैं, तो फिर सामने वाला सॉफ्ट हो जाएगा। और दूसरी जगह पे अगर हम सही थे, हमने ये प्रूव कर दिया कि हम सही थे, तो ऐसा नहीं कि हम बहुत खुशी मनाने लगे हैं और बोले देखो मैंने पहले ही बोला था और तुम तो ये देखो कि जो भी, हम उसको खुशी बनाने के बजाय या उसका मजाक उड़ाने के बजाय वो नहीं करें। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो अगर हम सही भी थे, तो हमारे ओपिनियन को वो अडॉप्ट नहीं करेगा, उसके अनुसार कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि मैं गलत, मेरा मजाक उड़ाया गया या मैं ह्यूमिलिएशन फील होगा, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो इट्स बेटर कि हम एटलीस्ट ऐसा ना करें कि लोगों को हम उन जब अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो एक जो एक टर्म मुझे जो बहुत अच्छी लगती है वो है रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट, कि हम डिसएग्री कर सकते हैं रिस्पेक्टफुली, कि हाँ भाई आपके पास आपका व्यू रखने का आपको अधिकार है, आप अपना व्यू रख सकते हैं, आप अपना व्यू मेंटेन कर सकते हैं, और मेरे पास इसी प्रकार से अधिकार है कि मैं मेरा व्यू मेंटेन रख सकूं। तो जरूरी नहीं है कि हमारे व्यूज सेम होने ही चाहिए, हम अपने अपने आपके तो हम रिस्पेक्टफुली इस प्रकार से डिसएग्री कर सकते हैं कि हम सामने वाले को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डीपर लेवल पे हम जैसे बात करते हैं, जो व्यूज हैं ये क्या है, ये माइंड की उपज है। तो सामने वाला व्यक्ति एक्चुअली उसका माइंड नहीं है। हम अगर स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें तो एक व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति भी एक सोल है, आत्मा है, और उसमें आत्मा के रूप में हर व्यक्ति शुद्ध है। पर जब अगर मन के और शरीर के लेवल पे देखा जाए तो अलग अलग लोगों के बिहेवियर्स या सोच, थिंकिंग और इस प्रकार से होती है। तो वो जो डिसएग्रीमेंट है वो एक सुपरफिशियल लेवल पे डिसएग्रीमेंट है। वो जो वास्तविकता में देखा जाए तो हम अगर स्पिरिचुअल लेवल पे तो हम सभी एग्री करते हैं, क्योंकि हमारा सबका एक ही गोल है कि अपने भगवान की सेवा करना है। इस प्रकार से जो हमारा स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में हम अलाइंड हैं सभी। परंतु जो भी डिसअलाइनमेंट या डिसएग्रीमेंट है वो एक नॉन स्पिरिचुअल लेवल पे है। तो इसलिए ये इस चीज को इम्पोर्टेंट। सो ओके, सो लेट्स सी कितना सेक्शंस बचे हैं। 1 2 3 4 sections बचे हैं. So I don't think we can finish it today. So maybe we can continue this next time. It's almost 2 o'clock, so we can pause here. And एक दो चीज़ें जो मैं मेरी तरफ से डेफिनेटली ऐड करना चाहता हूँ फ्रेंडशिप्स के लिए, जैसे हमने जो पढ़ा वो काफ़ी इंस्पायरिंग था कि लोगों को फ्रेंडशिप जब हमको बनानी है किसी से फ्रेंड, तो या लोगों को हमको कनेक्ट करना है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को उनको प्रेज करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको वैल्यूड फील हो और उनको सुने हम। और अगर डिसएग्री भी कर रहे हैं तो रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करें। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे आज फ्रेंडशिप डे है, तो काफ़ी सारा लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। ऑल्दो फ्रेंडशिप डे ऐसा नहीं है कि साल में एक बार आना चाहिए, एक्चुअली एवरी डे इज़ लाइक अ फ्रेंडशिप डे, क्योंकि
हम जो हमारे कनेक्शंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। जैसे हम कई बार बात करते हैं कि जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में वो है हमारी कनेक्शंस या हमारी फ्रेंडशिप्स। तो अगर हम उनको साल में एक बार याद कर रहे हैं तो भी अच्छा है कि कम से कम ना याद करने से कि कम से कम हम कुछ उसमें कनेक्ट कर पाएँ। पर हम एक दिन में बहुत सारे लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकते, या हम वो कनेक्ट करेंगे फिर साल भर बाद फिर कनेक्ट करेंगे तो एक्चुअली वो उतना फुलफिलिंग नहीं होगा जितना ये होगा कि अगर हम रेगुलरली कुछ फ्रेंड्स कुछ हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम रेगुलरली बात कर पाते हैं या हमारी इच्छा होती है कि हम बात करें, और कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम नहीं बात कर पाते हैं। तो कोशिश ये अगर हमें कर सकते हैं कि कुछ समय हम निकालें हमारे वीक में, हर वीक में, कि किसी एक फ्रेंड से हम बात करेंगे, और दोनों प्रकार के फ्रेंड से, एक जिससे हम रेगुलरली बात करते रहते हैं, जिनसे बात करना हमें अच्छा लगता है, और ऐसे फ्रेंड से भी जिनसे हम बहुत लंबे समय तक बात नहीं हुई है, ऐसे किसी फ्रेंड को हम कॉल करें या मैसेज करें, तो दैट विल बी वेरी मीनिंगफुल। सो दैट वे वी कैन कीप अवर फ्रेंडशिप्स अलाइव थ्रू आउट द ईयर, बजाय कि सिर्फ साल में एक बार याद करने के। सो ऑफ कोर्स एनी एफर्ट इज बेटर देन नो एफर्ट, तो कुछ एफर्ट तो लगता है। और ये भी है कि हम हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं बहुत सारे हो सकते हैं, हम सबसे रेगुलरली कम्युनिकेशन मेंटेन करना डिफिकल्ट हो सकता है या इम्पॉसिबल हो सकता है, पर हाँ कुछ ना कुछ एफर्ट इस डायरेक्शन में हमारा होना चाहिए, तो हमारी लाइफ ज़्यादा फुलफिलिंग होगी। दूसरा कि जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि वो एक डीपर लेवल पे हम उन रिलेशनशिप्स को ले जा सकें, क्योंकि मोस्टली रिलेशनशिप सुपरफिशियल होती हैं जब हम बहुत इस बारे में सोचते भी नहीं हैं, पर वास्तविकता में होना ही चाहिए कि हम उनके बारे में सोचें, उनको थोड़ा-सा एक हम कि कैसे मैं इस फ्रेंडशिप को और बेहतर बना सकता हूँ? क्या मैं सामने वाले को समझता हूँ अच्छे से? जो हम 5 एज़ की बात करते हैं कई बार, जो हर रिलेशनशिप पे अप्लाई होते हैं, कि अटेंशन, एप्रिसिएशन, अफेक्शन, एक्सेप्टेंस और अलाउंस, ये जो 5 चीज़ें हैं, तो फ्रेंडशिप डे पे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स के साथ क्या हम उनको अटेंशन, एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस, अफेक्शन और अलाउंस दे रहे हैं, या क्या हमारे फ्रेंड्स हमको ये चीज़ें दे रहे हैं। तो हम इस प्रकार से इवैल्यूएट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। कैन वी मेक इट बेटर एंड डीपर? So that's how I think friendship day will be more meaningful, और बजाय कि सिर्फ कुछ superficial चीज़ें करने के, although that also has meaning, जैसे कई लोग फ्रेंडशिप बैंड्स एक्सचेंज करते हैं या कुछ, तो इट इज़ शोइंग कि हाँ कुछ वैल्यू है, कुछ रिलेशनशिप है सामने वाले के साथ, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। पर ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा फुलफिलिंग होगा कि हम उन रिलेशनशिप पे एक डीपर लेवल पे वर्क कर सकें। सो विद दैट वी पॉज हियर। कुछ डिस्कशन हो, कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स हो तो वी कैन डिस्कस दैट। प्रभु थैंक यू, आज का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा था। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया रिलेशनशिप्स के बारे में। फ्रेंडशिप डे का ये स्पेशल लेक्चर था, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। मैं सोच रहा हूँ कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के बारे में, तो मे बी वन प्रैक्टिकल थिंग वी कैन डू इज़ एक लिस्ट बनाएं। मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि लिस्ट बनाऊँ, और तो वो हेल्प करती है। सो वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ आवर फ्रेंडशिप्स जो इम्पोर्टेंट हैं, और सिर्फ फ्रेंडशिप्स नहीं, दूसरी रिलेशनशिप्स की भी बना सकते हैं, बट एटलीस्ट अभी आज फ्रेंडशिप डे तो हम फ्रेंडशिप्स के बारे में बात कर सकते हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और उनको हम 2 उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक जिनसे
हमें कुछ कनेक्शन फील होता है पर हमारी रेगुलर बात नहीं होती है, और एक जिनसे हम रेगुलर बात करते रहते हैं। सो और फिर इन दोनों टाइप के फ्रेंड्स के साथ हम एक प्लान बनाएं कि वंस अ वीक हम ऐसा समय फिक्स कर लें जब दोनों कैटेगरीज में एक एक फ्रेंड से हम बात करेंगे थोड़ी देर में भी। 10-15 मिनट्स इज ऑल्सो इनफ। एक्चुअली टाइम इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम क्वालिटी टाइम किसी के साथ स्पेंड करते हैं तो वो 10-15 मिनट भी इम्पोर्टेंट, बहुत हेल्प मतलब हेल्पफुल बोल सकते हैं, या बहुत मीनिंगफुल हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको 1 घंटा 2 घंटे बात करनी है तो ही मतलब अच्छे से बात हुई, पर अगर 10 मिनट्स 15 मिनट्स भी है तो हम बात कर सकते हैं। तो एक ऐसे फ्रेंड से जिससे हमारी रेगुलर बात होती रहती, उससे हम और क्या बेहतर एक डीपर लेवल पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो, और दूसरा जिससे नहीं बात हो पाती है उससे हम कनेक्ट करें, और उसको मेंटेन कर सकते हैं। शीट में हम लिख सकते हैं कि हाँ इससे इस दिन बात हुई, तो फिर ऐसे नेक्स्ट वीक किसी और से बात करी, नेक्स्ट वीक किसी और से बात करी, फिर थोड़े टाइम बाद वापस से उस फर्स्ट पर्सन से बात करी। तो ऐसा एक हमारा रेगुलर स्केड्यूल बन सकता है। सो आई थिंक दैट कैन बी अ गुड प्रैक्टिकल एक्सरसाइज टू डू। एक तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा कि वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स जिनसे हम लोग बात कर सकते हैं। मैं अपने लिए मैं सोच रही थी कि एक्चुअली मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई हैव मेनी वेल विशर्स, पर कई बार इनफैक्ट वो लोग मुझे कॉल करते हैं और मैं कॉल बैक भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं मतलब अपनी ही चीज़ों में, अपने ही लाइफ में इतना यू नो एक लिमिटेड स्फेयर में मैं इतना बिजी हो गई हूँ या इतना मैं एब्जॉर्ब हो गई हूँ कि मैं जो है दूसरे लोग जो मेरे लिए इतना केयर करते हैं, इवन रिलेटिव्स भी जो मेरे लिए इतना अफेक्शन रखते हैं, पर मैं उनको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि आई विल मेक अ पॉइंट टू, क्योंकि आई मीन एट द एंड ऑफ द डे, या फिर मतलब जैसे कुछ ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं कि किसी न किसी रीज़न से यू नो इफ दे लेफ्ट, इवन यू नो वन मेरी मौसी जी, शी रिसेंटली यू नो लेफ्ट हर बॉडी, पर मुझे कई बार लगता है कि मैं उनसे इतनी बात नहीं कर पाई, या कई बार शी वॉज ऑलवेज वेरी ईगर एंड वेरी लविंग टूवर्ड्स मी, पर मैं उतना टाइम या उतना उनके साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। तो उस तरीके के फिर रिग्रेट्स होते हैं एट द एंड। तो अभी मेरे को लग रहा था कि छोटे छोटे वेज में ही जस्ट कनेक्ट करना अपने रिलेशनशिप्स जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें इतना जिससे हमें रिसीव होता है। तो जस्ट दैट वाज वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट व्हिच आई फेल्ट। तो इसमें काफ़ी मुझे लगा कि देयर आर मेनी प्रैक्टिकल थिंग्स इन दिस टॉपिक व्हिच वी डिस्कस टुडे टू अप्लाई इन आवर लाइव्स, वेरी मीनिंगफुल। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और जो मुझे याद आ रही थी कि जो ब्रॉनी वेयर की हमने बुक के बारे में पॉइंट पढ़ा है कि 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग जो बुक है, उसमें उन्होंने एक पॉइंट ये भी लिखा था कि जो सब कई जो मरने वाले लोग रहते हैं उसकी एक बड़ी रिग्रेट ये भी रहती है कि हमने अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ इनफ टाइम स्पेंड नहीं किया। तो हमारा समय कब खत्म होगा हमें नहीं पता, या दूसरे व्यक्ति का समय कब खत्म हो जाएगा हमें नहीं पता। तो एटलीस्ट हम रेगुलरली उसमें इन्वेस्ट करते रहें, समय थोड़ा सा निकाल के, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास सभी के पास 24 घंटे ही हैं। तो हम जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि जो भी हम काम करते हैं 24 घंटों में, वो डिपेंड करता है कि हम उसको कितना वैल्यू कर रहे हैं या कितनी प्रायोरिटी देते हैं। जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो करने का समय हम कैसे न कैसे निकाल ही लेते हैं, और जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है उसके लिए हमें समय कभी भी नहीं मिलेगा। अगर हम 24 घंटे फालतू भी बैठे रहेंगे तो भी हम वो वाली चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस चीज़ को समझ के कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है और इसके लिए मुझे समय निकालना है, उस चेतना के साथ हम समय
को बाहर निकालें और कनेक्ट करें. So I think that is important. Okay, anything else anyone want to share? Okay, so thank you everyone for joining, and we'll see you next week. We'll continue and finish this book, and thank you. Wish you a very happy Friendships Day. Hare Krishna.